پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ازل سے ابد تک خدائے محمود ہے اور جس نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اس کے پاک اور پوتر نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں، خواہ آپ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا فیس بک کے متعدد پیجز پر یا کسی بھی میڈیا پر، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ممنون ہوں خداوند کا کہ یک بار پھر مجھے یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا کہ خداوند کا خادم ہوتے ہوئے اس زندگی بخش کلام کو خود بھی سیکھوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا بھی ہو سکوں۔ آج میں عہد عتیق میں سے بزرگ دانییل نبی کی کتاب کے مطالعے کا آغاز کروں گا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آج اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک میں اس کتاب کے تعارف کے بارے میں ہی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے پیچھے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم دانییل اور اس وقت کے حالات اور پس منظر کو صحیح طور پر سمجھ نہ پائیں، اس بڑی گہری اور عمیق کتاب کو ہم تب تک سمجھ نہیں پائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری بائبل مقدس میں باقی بھی تو 65 کتب ہیں، ان میں سے اسی ایک کتاب کا چناؤ کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ بہت جلد خداوند نے چاہا تو مکاشفہ کی کتاب جو یوحنا عارف کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، وہ مکمل ہو جائے گا تقریباً 6 سال کے عرصے میں، اور ویکلی اس پر ریگولر سٹڈی ہوتی رہی، آیت با آیت اور لفظ با لفظ، اور دوران مطالعہ مجھے یوں کچھ آگاہی ہو رہی تھی کہ جب یہ کتاب مکمل ہو، چونکہ ہم مکاشفہ کے آخری باب میں ہیں، تو اس کے بعد یا اس کے قریب قریب میں حزقیل اور دانیل، ایون یسایہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کروں، اور وہ بھی آیت با آیت اور لفظ با لفظ، اس لیے کہ یہ نبوتی کتب ہیں اور ان میں بہت کچھ ہے میرے اور آپ کے جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے۔ اور بائی دا وے، اگر آپ کے دل میں یہ بھوک اور پیاس ہو کہ آپ بھی خدا کے کلام کو مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت سے آخری باب کی آخری آیت تک سیکھیں، تو آپ جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہیں، جہاں ویڈیو ہے نیچے میری ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر جا کر ٹیچنگ ویڈیوز میں جائیں، اور پھر نیا عہد نامہ، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں، تو آپ کو مکاشفہ کی کتاب کی وہ تمام A to Z ویڈیو ماسوا ان کے جو ابھی کچھ رہ گئی ہیں اور آئندہ مکمل ہوں گی بفضل خدا، تمام ویڈیوز ایون آڈیوز بھی
आपको वहां पर मिलेंगी मेरी वेबसाइट पे। दूसरी बात, मेरी एक आरजू है, खुदा की मर्जी होगी शायद पूरी हो पाए, मैं नहीं जानता, और वो ये कि बाइबल मुकद्दस की जो कुतुब हैं, काश कि मैं इस जिंदगी में रहते हुए उन कुतुब का आयत ब आयत या लफ्ज ब लफ्ज मुतालिया कर पाऊं, और जैसे मुकाशफा की किताब का खजाना ऑलरेडी जमा हुआ है, काश के सारी कुतुब का एक खजाना जमा हो जाए। मैं हूं या ना हूं, उर्दू जबान में यह खजाना मुस्तकबल में हमारी नई जनरेशन के लिए हो। मैंने आमाल की किताब, जो रसूलों के आमाल की किताब है, उसका भी आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज ऑडियो फॉर्मेट में मुकम्मल तौर पर मुतालिया किया, और फिर इस किताब को मुकम्मल करके ऑडियोज की सूरत में मेरी वेबसाइट पर नए अहदनामा में वो भी मौजूद है। मैंने यूहन्ना की इंजील का मुतालिया किया, और आप में से वो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आप जानते हैं कि इन स्टडीज को आपने किया है। पूरी यूहन्ना की इंजील आयत ब आयत और बाज़ोकात तो लफ्ज ब लफ्ज मैंने इसको मुकम्मल किया, और ऑडियो फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। अभी मैं पहले यूहन्ना के खत में हूं और उसके तीसरे बाब का मुतालिया कर रहा हूं। इसकी भी जो हो चुकी है वो ऑडियोज ऑलरेडी आपको मेरी वेबसाइट पर मौजूद मिलेंगी, और इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन बाइबल मुकद्दस के कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे हॉट इश्यूज जो गैर मसीही लोग सवाल करते हैं, उनके भी जवाब मौजूद हैं, और कई गुस्ताख लोगों के जवाब में जो कुछ मैंने कहा वो भी मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। बहुत सारे सवालात के जवाबात 100 के करीब मौजूद हैं ऑलरेडी, जो आए दिन लोग हमसे पूछते हैं, और शायद आपके ज़हन में भी हो। मेरी 18 के करीब कुतुब उर्दू और अंग्रेजी में ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। यह कोई ऐड नहीं दे रहा हूं, यह आपको बता रहा हूं कि अगर आप जरूरत फील करें, महसूस करें बाइबल मुकद्दस की उन कुतुब का मुतालिया जिनका मैंने किया है और खजाना मौजूद है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां जाएं और मुतालिया करें मुफ्त, बगैर किसी पैसे के। और अब जब मैं दानियेल नबी की किताब का मुतालिया करता हूं, तो यह भी दानियेल नबी की अहद अतीक के फोल्डर में मेरी वेबसाइट पे जाएगी, ताकि हम इसका भी मुतालिया कर सकें। मैं यह भी बताऊंगा कि मैं इस किताब का आयत ब आयत और बाज़ औक़ात लफ्ज ब लफ्ज मुतालिया करूंगा, और आपकी शमूलियत ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, सोच के एतबार से, और इवन ऑनलाइन हमारे साथ जरूरी है, ताकि हम खूब बरकत पा सकें। तो यह एक वजह थी कि मैं दानियल नबी की किताब के मुताले का चुनाव क्यों किया, क्योंकि मुकाशफा की किताब के साथ जो मुकम्मल होने को है, इसका गहरा ताल्लुक है। दूसरी बात, दानियल नबी की किताब के मुताले के पीछे एक और बात है, और वो ये है कि मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस किताब से मुताल्लिक जाना। वो ऑलरेडी आलिम कुल थे और वो जानते थे, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए बुजुर्ग दानियल का आपने रेफरेंस दिया, हवाला दिया है, और ये हम देखेंगे मती
की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 24 बाब में। और अगर खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि दानियल की किताब को समझें, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए इस किताब का समझना बहुत जरूरी और अहम है। जब मैं मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 24 बाब को देखता हूं, तो इसकी 15 आयत में मसीह खुदावंद फरमाते हैं, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियेल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, और आगे ब्रैकेट में लिखा है, पढ़ने वाला समझ ले। उजाड़ने वाली और मकरू चीज को जिसका दानियल ने जिक्र किया, मुकद्दस मकाम में खड़ा देखो। यह उजाड़ने वाली और मकरू चीज क्या है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। आपको इंतजार करना होगा कि दानियल ने कहां पर इसका जिक्र किया और क्यों किया, और यह क्या है उजाड़ने वाली मकरू चीज। तो दूसरी बात हम इसलिए बतालिया कर रहे हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी बाबत जिक्र किया और फरमाया है। और बाय द वे, जब मैं दानियल की किताब का मुतालिया करता हूं, इसका 11 बाब और इसकी 31 आयत, तो यहां पर लिखा हुआ है, और अफवाज उसकी मदद करेगी और वो मोहकम मकदस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे, और उजाड़ने वाली मकरू चीज को उसमें नस्ब करेंगे। है हवाला जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया दानियल की किताब में कि नहीं? ऑफ कोर्स है। और फिर मैं जब बुजुर्ग दानियल ही की किताब और इसका 12 बाब और इसकी 11 आयत देखता हूं, तो यहां पर लिखा है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। ये क्या है? जब हम इन आयात पर जाएंगे तो हमें और ज्यादा डिटेल मिलेगी तफसीर के साथ। अभी मैं भागा दौड़ी नहीं करना चाहता, मुझे खुदा को जवाब देना है, आपको नहीं। इसलिए मैं बड़े ध्यान से इन आयात और इन अल्फाज पर आपके साथ मिलकर गौर खोज करूंगा। दानियल 7 बाब और उसकी 13 आयत में यूं लिखा हुआ है, और मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी ममलकत को जवाल लाजवाल होगी। उसकी ममलकत लाजवाल होगी। यह खुदावंद यीशु मसीह की बाबत यह आयात बयान करती है। दानियल नबी की किताब का हम इसलिए भी बतालिया करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस किताब का हवाला दिया। और नंबर 2, दानियल की किताब उस कदीमल अय्याम जो अजल से कलमा की सूरत में खुदा में मौजूद था, उसकी बाबत जिक्र कर रहे हैं बुजुर्ग दानियल इन
आयात में जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। और फिर अगर मैं बुजुर्ग मती की मार्फत लिखी गई इंजील में जाता हूं 24 बाब और इसकी 30 आयत, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा आयात के तलावत करने में, लेकिन देखिए, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। अभी अभी मैंने दानियल 7 की 13 तलावत की थी और सेम वही बात ये जो मती 24 की 30 है इसमें भी हमें मिल रही है। और फिर जब मैं 26 बाब देखता हूं, मती 26 बाब और इसकी 64 आयत, तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मतलब की दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। दाने हाथ बैठे और आसमान से बादलों पर आते देखोगे। और ये जो दानियल की किताब का हवाला हमने पढ़ा, क्या उसमें यही बात नहीं है जो हमारे लिए बड़ी गौर तलब और अहम तरीन है कि हम इस पर थोड़ा सोचें? कि मैंने रोया में देखा एक शख्स को जो कदीमुल अय्याम है और बादलों के साथ आया और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसकी है जो अबद तक रहेगी। यही तो वो बातें हैं जो मती 24 और 26 में हमें नजर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसलिए भी दानियल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। यह तीसरा नंबर है कि यह एक नबुवती कलाम है। खुदा के लोगों, अगर आप वाकई इस बाइबल स्टडी में सीरियस हैं, आप तो सीरियस है बाय द वे, लेकिन अगर वाकई सीखना चाहते हैं तो अपना पेन पेंसिल पेपर अपने पास रखें ताकि इन रेफरेंसेस को आप नोट कर सकें जो मैंने पेश किए हैं और मुस्तकबिल में भी करता रहूंगा। और यूं आपके पास भी एक खजाना जमा हो जाएगा अगर आप हमारे साथ मिलकर इस मताले को जारी रखेंगे। तो हम इसलिए भी मुतालिया कर रहे हैं कि दानियल की किताब असल में एक नबुवती किताब है और मुझे यूं कहना चाहिए कि इस किताब का 1/4 हिस्सा नबुवतों पर मबनी है। इनमें से कई नबुवतें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और कई नबुवतें अभी बाकी हैं जिनको हम पूरा होते हुए देखेंगे और यकीनन ऐसा होकर रहेगा। इस नबुवती कलाम का जो मेन और बड़ा मजमून है वो मेरा और आपका निजात दहंदा खुदाबंद यीशु मसीह है। दौराने मुतालिया आप देखेंगे कि कहां कहां खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं और अहम तरीन है। खुदाबंद यीशु मसीह के अलावा हम इसराइल के बारे में देखेंगे, गैर अकवाम के बारे में देखेंगे, बदी और शैतान और गुनाह की बाबत देखेंगे, उस बड़ी मुसीबत के बारे में देखेंगे, गुनाह के शख्स के बारे में जो हलाकत का फर्जंद है उसकी बाबत देखेंगे, 1000 साल बादशाही से मुताल्लिक देखेंगे और अब्दियत की बातें दानियल नबी की किताब में हम देखेंगे जो मकाशफा की किताब में हम मुतालिया कर चुके हैं। यह छोटी और मामूली किताब नहीं है और बहुत कुछ है जो करंट हालात इस दुनिया में हैं
से मुताल्लिक भी ये किताब मुझे और आपको बता रही है और आगाह कर रही है। चौथी बात, हम क्यों इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं, वो ये है कि हम इस किताब से जो खुदा के लोग हैं ना, उनके ईमान पर साबित कदम, मुस्तहकम और कायम रहने और दुनिया के साथ कंप्रोमाइज या समझौता ना करने से मुताल्लिक सीखते हैं। और उनकी जिंदगियों से मेरे लिए और आपके लिए बड़ा खूबसूरत सबक निकलता है कि हम कैसे अपने आप में वो खुसूसियात पैदा करें जो उन मर्दाने खुदा में थी, दानियेल और दानियेल के साथियों में। एक और बात कहता चलूं जो इसी नुक्ते से ताल्लुक है, मुझे बाज औकात अफसोस होता है कि जो दानियल के 3 दोस्त थे, उनके नाम क्या है? आप फौरन कहेंगे सदरक मिसोक अब्दुर्रजू, लेकिन पता है ये वो नाम थे जो बाबली देवताओं के नाम से बाबल में रखे गए थे। ये उनके अपने नाम नहीं थे। उनके अपने नाम क्या थे? पहला बाब आप तलावत कीजिएगा बाद में, और 6ठी और 7वीं आयत में आपको मिलेगा कि उनके अपने नाम क्या थे। खैर, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन यहां इसलिए हम मुतालिया करते हैं कि ये ईमान से मुताल्लिक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम करती है मेरे लिए और आपके लिए। ऐसे मुकद्दसों की बाबत जो यहोवा खुदा पर ईमान रखते थे और उन्होंने दुनिया के साथ समझौता नहीं किया। इवन वो असीरी में थे, 70 साल तक वो बाबल की असीरी में थे। आलम लोग कहते हैं कि शायद दानियल जब असीर होकर गया 17, 18, 16, 17 साल का हुआ होगा, और 70 साल वहां असीरी में गुजारे। उसके बाद वो वापस लौटा, और इस सारे अरसे में बाबल की कई ममलकतें और सल्तनतें तब्दील होती चली गई होंगी, लेकिन दानियल और उसके साथियों का ईमान कायम और मुस्तहकम रहा। वो बाबलियों के साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे, इंसान थे, लेकिन वो जानते थे हमारा खुदा इस कदर अजीम खुदा है जो हम में और हमारे साथ है कि खा कुछ भी क्यों ना हो, वो हमें बचाने पर कुदरत रखता है। अजीजों, मुझे यूं लगता है कि इस दौर में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, हम दानियेल की तरह और इस्राएलियों की तरह ना तो बाबल में ना ही असूर में मुक़य्यद हैं, यानी कैद के आलम में, यानी असीर हैं। लेकिन एक पहलू के एतबार से मैं यूं कहूंगा कि लगता है कि मैं और आप भी आज वैसी तो नहीं, लेकिन एक पहलू के एतबार से असीरी में हैं, कैद में हैं। वो कैसे? मगरब ने, इवन मशरक ने भी, और दुनिया के बर्रे आजमों में ऐसे कवानीन बन चुके हैं और कुछ में बन रहे हैं जहां पर आप खुदा की जात के बारे में, अपने ईमान के बारे में सरेआम जिक्र नहीं कर सकते। स्कूलों में, इवन मगरब में, आप स्कूल्स में
क्रिश्चियनिटी की बात कि ये सुपर है, आप नहीं बात कर सकते। मेरा स्कूल से ताल्लुक है और मैं जानता हूं वहां पर आप बात नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे और अगले को वो नागवार गुजरे तो आप पर सू यानी केस हो सकता है। हम किसी हद तक असीरी में हैं। 10 अहकाम असेंबलीज और स्कूलों से उठ गए हैं। अब जरा सी बात करने से तरसती है ज़बां मेरी। फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म के लिए तो दरवाजे खुले हैं, मास एवेंजलिज्म के लिए अगर गवर्नमेंट इजाजत दे तो, वैसे है नहीं। लेकिन जनरली आप मसीह की बात करते हुए कई बार सोचेंगे कि इसका कहीं कोई मनफी रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे कि हम इस किताब का मुतालिया इसलिए भी करते हैं कि दानियेल और दानियेल के साथियों के ईमान से मुतालिक हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। दानियेल की जिंदगी बा मकसद जिंदगी थी। दानियेल और उसके 3 दोस्तों का फैसला था कि हम अपने ईमान पर कायम रहेंगे, और वो कायम रहे भी, जैसा हम इस किताब में देखते भी हैं। इसका पहला बाब और इसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन दानियेल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक न करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराउन के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो एक अजनबी देश में थे। वो सोच सकते थे कि यहां का मुआशरा कैसा है, हम खा पी लें, मसला ही कोई नहीं, ऐश करो, सारे खूंदे ने। लेकिन उन्होंने कहा नो, जो यहोवा खुदा ने शरीयत में मना कर दिया है, मुझे उससे मना होने की जरूरत है। हम जो यूरोप में हैं, हम जरा इन बातों की बाबत सोचें कि कहां कहां हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं इस दुनिया के खानों के साथ और पीने की चीजों के साथ। सोचना है। और फिर 6 बाब और उसकी 10 आयत में भी यह बात लिखी हुई है। जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, यहां पर खाने पीने की बात तो नहीं है, लेकिन दानियल का मामूल किया था, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वह दिन में 3 बार हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। क्या उसने खुदा से पूछा नहीं होगा कि इन्हां दे स्वादले खाने खावा कि नहीं? जरूर पूछा होगा। और फिर वो इस नतीजे पर पूछा, खावा ना इन्हां दे स्वादले खाने। हमें बहुत कुछ है यहां पर हमें मिलता है। 5वें नंबर पर हम इसलिए इस किताब का मुतालिया करते हैं कि इसमें खुदा के बंदा दानियेल और उसके साथियों की जो दिलजोई के साथ दुआ थी, यहोवा पाक खुदा के हुजूर उस दुआ के जवाबात मिलते हैं। और काश
کہ میں ان آیات کو جتنی بھی ہیں میرے سامنے ان کو آپ کے سامنے تلاوت کر سکوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ صرف چند 2 باب اور اس کی 17 آیت سے لکھا ہے، تب دانیل نے اپنے گھر جا کر، اب ان کے اصل نام آ گئے تینوں کے، حنانیہ اور میسائیل اور عزریا، اپنے رفیقوں کو اطلاع دی کہ آؤ بھائیو ہن میٹنگ کریے، مسئلہ خراب ہو گیا ہے اور ہم دعا کریں، تاکہ وہ اس راز کی باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اور پھر میں پہلے ہی 6 باب کی 10 آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکا ہوں کہ وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں۔ اب بعد میں 9 باب کی 3 آیت سے لے کر 19 آیت تک تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہے دعا سے متعلق۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسی دانیل کی دعا کے وسیلہ سے اور خدا پر ایمان کے سبب سے یہوہ نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور آگ کی بھٹیوں کو گلزار بنا دیا۔ اس وقت ہمیں اس طرح کے ایمان سے متعلق خوب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے لیے آخری بات، 6 پوائنٹ کہ کیوں ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دانیل اور اس کے ساتھیوں کے چوگرد خطرات منڈلا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ارد گرد بھی خطرات منڈلاتے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کے ہی کیوں نہ ہوں، اپنوں کے بھی اور بیگانوں کے بھی، ایون اپنے آپ کا بھی۔ ہمارا دشمن ابلیس ہمارے خلاف محاذ آرا ہے، لیکن بابل میں خطرے کے بیچ میں بھی ان کے ایمان اور ان کی وفاداری کے سبب سے خدا ان کے ساتھ وفادار رہا۔ پہلے باب کی 8 آیت اور 6 باب کی 10 آیت میں تیسری بار اس آیت کو کوڈ کر رہا ہوں، اور خاص کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے پہلے باب کی 8ویں آیت سے لے کر مسلسل اگر 16 آیت تک تلاوت کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اور پھر 6 باب کی 6 آیت سے 12ویں آیت تک تلاوت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ آج اس قلیل سے وقت میں نے صرف اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالی کہ ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو کیوں کریں، اس میں کیا پایا جاتا ہے، اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک اسی ٹائم پر ہم پھر سے جمع ہوں گے اور ہم دانیل کی زندگی
اور جس سچویشن میں یہ کتاب لکھی گئی اس وقت کے حالات سے متعلق تھوڑا جانیں گے، اور پھر جب ہم دانیل کی کتاب کا آیت با آیت مطالعہ کریں گے نا تو یہ بیک گراؤنڈ آلریڈی ہمیں پتا ہوگی، زمین تیار ہوگی، اور پھر جب ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم ان آیات کے وسیلہ سے صحیح طور پر سمجھیں گے بھی اور برکت بھی پائیں گے۔ میری دعا ہے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں اور آپ خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ آسمانی پتا، شکر کرتے ہیں آپ نے روح القدس کی تحریک سے اس کلام کو لکھوا کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ میری مدد کیجئے کہ جو کچھ میں تیاری کرتا ہوں اس میں وہ باتیں ہوں جو میری ذات کے لیے اور میرے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہوں۔ اس اسیری کے زمانہ میں خداوند ہمیں ایمان پر قائم رہنے کا فضل عنایت فرمائیے، ہماری دعائیاں زندگیاں اور مضبوط ہوں، ہم آپ کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور ہماری زندگی سے آپ کے نام کو جلال ملتا چلا جائے۔ خداوند جتنے بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ان کی زندگی میں ہے، بیماری، دکھ یا تکلیف یا ٹینشن، آپ جانتے ہیں۔ اپنے مقدس ترین نام میں، جس نام میں شیروں کے منہ بند ہوئے ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو فتح یابی سے ہمکنار کیجیے تاکہ آپ کا نام ہماری زندگیوں سے جلال اور عزت پائے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے، مسیح خداوند کے جلالی اور پرفضل نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک آپ خداوند کی امان میں رہیں۔